मैक्सिमम केसेस हम अलाइनर से कर सकते हैं। वी हैव टू वेयर रिटेनर्स थ्रू आउट द लाइफ। कन्वेंशनल डेंटल क्लिनिक है, आप एक क्लिनिक में एंटर हुए जस्ट हियरिंग द साउंड ऑफ द मशीन्स एंड द ग्राइंडर्स, और आपको एक फियर होता है कि अच्छा अब मैंने अंदर जाना तो शायद ये जो मशीनरी है ये मेरे ऊपर भी यूटिलाइज हो रही हो। देखिए, स्माइल ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी डन ओवरनाइट एज वेल। जल्दबाजी में आप काम करते हैं उतना ही आपके जो रिजल्ट्स हैं रिफाइंड नहीं होते। These treatments are very expensive. So what do you think? Are these really expensive? नीड बेस्ड डेंटिस्ट्री को आप जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग करते जाएंगे वो उतनी ही आपके लिए एक्सपेंसिव होती जाएगी। There's this one myth कि इससे ना enamel weak हो जाते हैं दांतों के, and then you feel sensitivity in your teeth. विदाउट एनी प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक आप ब्रश करेंगे, आप अपने दांतों को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे। यू आर डैमेजिंग योर gums, you're damaging your enamel, so you just have to follow a proper technique. Did you know most of the people in Pakistan only visit dentist when they are in pain? In fact, 70% people delay dental treatments due to lack of awareness, fear, and cost. Hi, my name is Javeria Siddiqui, and today our topic is the power of confident smile. We have a very special guest with us, Dr. Waheen, Project Director at DentoCorrect, to discuss smile correction, clear aligners, and ISO certification. Hello, how are you? Thank you so much, Javeria. I'm good. What about you? I'm good. Let's start it simple. What is DentoCorrect and how do you differentiate it from other dental clinics? So basically, DentoCorrect is a multi-city ISO certified specialist owned practice, and we have multiple clinics in different cities of Pakistan, which makes it a total different practice and different experience for the patient. What is the idea behind DentoCorrect? Okay, so idea behind DentoCorrect is basically to provide dental care to every single person at their ease and at the convenience that giving them a confidence that you won't be bluffed or you will be getting the perfect dental treatment at a single point. Was there any market gap which you tried to fill? So definitely there was a clear market gap क्योंकि जो patients हैं they always need some security for their treatment. Along with this, they are very much concerned about ethical practice. So DentoCorrect आपको एक ethical practice provide करता है और you don't have to worry about it if you're starting your treatment in Lahore and you are shifting to Islamabad. So you can get your treatment completed from there as well. Okay, Dr. Waheen, a lot of people fear going to dentist. तो DentoCorrect किस तरह से इसको cater करता है? अच्छा, so basically DentoCorrect पे हम लोग एक ट्रीटमेंट से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस देते हैं पेशेंट को, एंड दैट एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। सो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वी ट्राई कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले काउंसिल करें एंड वी लिसन टू द पेशेंट। उनको सबसे पहले सुना जाता है कि व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, एंड देन वी गिव देम द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. And after that, whenever they are happy with the treatment, we just say them goodbye. Other than that, we are always open for them. Okay, that's really kind of you. आप मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट जब आता है तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है विद अ परफेक्ट स्माइल? देखिए, definitely smile is the first thing someone notices in you. So I think कि आपकी स्माइल जब तक बेहतर नहीं है तब तक आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के सामने हंस नहीं सकते, किसी गैदरिंग में आप अच्छी तरह से स्माइल नहीं कर सकते. सो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनैलिटी कि जब भी आपकी स्माइल इम्प्रूव्ड होती है, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दैट. सो आई थिंक आपको अपनी स्माइल पे इन्वेस्ट करना चाहिए. Do you see any emotional transformation in those people, in your patients? Definitely, psychologically भी अगर आप देखें, so when you're not at all confident in something, you can never do it better way. So जब आप confident होंगे अपनी स्माइल को लेके, तभी आप एक बेहतर तरीके से अपने डेली रूटीन टास्क को भी फॉलो कर सकते हैं, और आप किसी भी गैदरिंग में या किसी भी मीटिंग्स में अगर आप हैं या किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने आप को देखते हैं, सो यू ऑलवेज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस विद योर स्माइल. जब कोई पेशेंट आता है तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी किस चीज़ की होती है, कॉमन इनसिक्योरिटी इन पेशेंट्स? ओके, सो सबसे ज़्यादा कॉमन इनसिक्योरिटी जो हमने नोटिस की है पेशेंट्स में, दैट इज़ रिलेटेड टू द कॉस्ट, अलॉन्ग विद दिस द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट. कि क्या हम अगर किसी चीज़ की कॉस्ट पे कर रहे हैं, सो आर वी गेटिंग दैट ट्रीटमेंट डन प्रॉपर्ली और नॉट, एंड इफ द डॉक्टर इज बीइंग फेयर विद अस और नॉट. Okay, we heard about ISO certification a lot, and DentoCorrect is ISO certified. So what is this ISO certification? So basically, ISO stands for International Organization for Standardization,
And Alhamdulillah, we are the only clinic chain in Pakistan who is ISO certified. ISO certification simply means that your process, efforts, your treatments, your safety measures are on the benchmark of global standards. But how does it impact our patient? So जो हमने अभी बात की पहले patient fears की, ISO certification eliminates those fears at certain extent because ISO हमें बाउंड करता है टू मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड्स कि हम एक पेशेंट को प्रॉपर तरीके से डील कर सकें, हम स्टरलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकें, एंड अलॉन्ग विद दैट हम अपने प्रोसेसेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेट कर सकें. So I think that is one of the major aspects people should look forward to moving to any clinic or anything they want to go. Okay, Dr. Waheen, as we know, DentoCorrect have multiple clinics in Karachi, Islamabad, Faisalabad, in Peshawar as well. Yes. So how do you guys maintain the consistency in quality? देखें, जब हम मल्टी सिटी क्लिनिक्स की बात करते हैं और ISO की बात करते हैं, सो ISO हमारे हर क्लिनिक पे इम्प्लीमेंट होता है. वी हैव सर्टेन प्रोसेसेस जिन प्रोसेसेस के बाद हमारे मल्टीपल क्लिनिक्स रेडी होते हैं. इफ़ वी आर लॉन्चिंग अ क्लिनिक इन सम सिटी, so we have a set standard for that. We have some benchmarks internally, and we have a complete whole team, including marketing team, including CSR teams, including feedback mechanisms, including our complete team protocols, जिनके थ्रू हम मॉनिटर करते हैं अपने स्टाफ को. We have certain devices along with us. We are moving with the AI as well कि हम अपने processes को digitally कैसे strong बना सकते हैं, and alhamdulillah we have done that. So जो प्रैक्टिस हमारी लाहौर में आपको मिलेगी वही प्रैक्टिस आपको पेशावर में भी मिलेगी, वही प्रैक्टिस आपको मुल्तान में भी मिलेगी, एंड वही आपको लाहौर में भी मिलेगी. एंड अलॉन्ग विद दिस हम क्लिनिक्स एक्सपैंड भी कर रहे हैं. सो करेंटली इन लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 3 डिफरेंट क्लिनिक्स एट डिफरेंट लोकेशंस. Okay, अच्छा, पेशेंट्स का ना एक बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि अगर मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ और 2 हफ्ते बाद मैं शायद कराची में हूँगा, तो मेरा जो ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा था वो वहाँ पे कंटिन्यू हो पाएगा, मेरे अलाइनर्स वहाँ पे जो थे वहाँ पे आ जाएंगे, डिलीवर होंगे. ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं पेशेंट्स के, तो इनको किस तरह से आप केटर करते हो, बिकॉज यू हैव मल्टीपल लोकेशंस. सो बेसिकली हम जब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जो आपने मुझसे अभी पहले भी पूछा, तो हम अपने डॉक्टर्स की, अपने स्टाफ की कांस्टेंट ट्रेनिंग्स और मॉनिटरिंग्स कर रहे होते हैं, एंड कांस्टेंट यूनिवर्सल ट्रेनिंग्स की वजह से हम लोगों का स्टाफ एक ही तरह से परफॉर्म कर रहा होता है, एंड वी हैव सर्टेन फिल्टर्स टू फिल्टर द स्टाफ टू एंगेज देम. सो जो ट्रीटमेंट आपको लाहौर में मिल रहा है, जैसे हमने बात की, वही आपको कराची में भी मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों की ट्रेनिंग्स इतनी स्ट्रांग है अपने स्टाफ को लेके, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग हैं कि आपको एक ही जैसे ट्रीटमेंट आउटकम्स हर जगह पे मिलते हैं. एंड दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द की एस्पेक्ट कि आप अगर लाहौर में स्टार्ट कर रहे हैं या कराची में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र अलाइनर्स का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक होता है, Yes, लेंथी exactly. होता है. So आप without any hassle or without any hazard of losing the treatment, आप लाहौर आके भी करा सकते हैं, आप पेशावर जाके भी करा सकते हैं. So we have a complete treatment and our digital systems are intact. So हमारे लाहौर के डॉक्टर को भी पता होगा कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारे कराची के डॉक्टर को भी पता होगा कि इस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट चल रहा था. So it is totally a centralized and intact system. You don't have to worry about it. Okay, Dr. Waheen, we hear a lot about clear aligners these days. So how does it work? सो बेसिकली आपने क्लियर अलाइनर्स की बात की, तो ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है. इसको मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेसेस क्या चीज़ है. सो ब्रेसेस जो थी वो वायर्स और ब्रैकेट्स होते हैं, आपके दांतों पे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत सीधे किए जाते हैं. उसका एक ऑल्टरनेटिव मॉडर्न सोल्यूशन जो है दैट इज क्लियर अलाइनर. ठीक है. सो क्लियर अलाइनर्स के बारे में एक मिसकंसेप्शन लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि क्या ये प्लास्टिक ट्रेज उनके दांतों को मूव करेंगी भी कि नहीं करेंगी. सो आई वुड जस्ट से दैट आई माई सेल्फ इज अ पेशेंट ऑफ क्लियर अलाइनर्स एंड आई हैव डन दैट प्रैक्टिस ऑन माई सेल्फ एज वेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड ग्रेट रिजल्ट्स विद दैट. अच्छा, मैंने भी क्लियर अलाइनर जो है वो यूज़ किए हैं, बट आई फील लाइक कि जो ब्रेसेस है उसका मैंने जो रिजल्ट देखा है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. ऑन द अदर हैंड जब मैंने क्लियर अलाइनर्स का देखा तो वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब आपको रिटेनर साथ साथ यूज़ करने पड़ते हैं. तो आपको डोंट यू फील कि जो हमारे कन्वेंशनल है वो ज़्यादा बेहतर है? देखें, ये भी एक अगेन एक मिसकंसेप्शन है कि रिटेनर्स आपको सिर्फ अलाइनर्स में यूज़ करने पड़ते हैं, ब्रेसेस में नहीं करने पड़ते, या उसका ड्यूरेशन कम है. बट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड आवर बुक्स जो कि लिटरेचर्स हमें बताते हैं, वी हैव टू वेयर रिटेनर्स थ्रू आउट द लाइफ. रिटेनर्स आपको पूरी जिंदगी जरूरी है, बिकॉज रिटेनर्स का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से योर टीथ ट्राई टू मूव बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है. सो उसमें 2-3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. अब कुछ फैक्टर्स को हम स्लो डाउन कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो जो रीलैप्स है आपके दांतों का, आपके दांतों की पोजीशन चेंज होना, वो बहुत लॉन्ग टर्म फेज में चला जाता है. आप उसको लेटेंसी फेज कह सकते हैं.
सो उस प्रोसेस को हम स्लो जरूर कर सकते हैं बट उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते. आइदर वी आर गोइंग फॉर द ब्रेसेस, आइदर वी आर गोइंग फॉर द अलाइनर्स. रिटेंशन आपको इक्वली दोनों प्रोसेसेस में जरूरी है. ऐसा नहीं है कि अलाइनर के रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है और ब्रेसेस के रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. बट येस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द अलाइनर्स जो कि एक डॉक्टर को समझना बहुत जरूरी है और एक पेशेंट को समझना बहुत जरूरी है. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द फैक्टर्स, यू कंबाइनिंग देम, so you achieve great tremendous results with the line. Okay, Dr. Waheen, are aligners suitable for everyone? देखिए, I would say no, because aligners are certain thing जो कि मैंने अभी पहले बात की है कि it is case specific. हाँ, लेकिन अब aligners में इतनी modifications और इतनी ज़्यादा advancements आ गई हैं कि maximum cases हम aligner से कर सकते हैं. Okay, let's come back to DentoCorrect. जब एक पेशेंट डेंटोकरेक्ट में एंटर होता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है? सो बेसिकली एज अ पेशेंट अगर मैं डेंटोकरेक्ट की बात करूं तो व्हेनेवर यू एंटर द एनवायरनमेंट इट इज वेरी काम एंड वेरी कोजी. यू जस्ट फील कंफर्टेबल देयर. यू जस्ट डोंट गेट अ वाइब ऑफ अ कन्वेंशनल डेंटल क्लिनिक. आप एक क्लिनिक में एंटर हुए, जस्ट हियरिंग द साउंड्स ऑफ द मशीन्स एंड द ग्राइंडर्स एंड यू जस्ट सिटिंग देयर. और आपको एक फियर होता है कि अच्छा, अब मैंने अंदर जाना तो शायद ये आवाज़ें, ये जो मशीनरी है, ये मेरे ऊपर भी यूटिलाइज हो रही होगी. सो यू डोंट गेट टू हेयर एनीथिंग लाइक दैट. यू जस्ट सिट देयर, कीप एंड काम. You have a very engaging staff and you just feel like home, like you're sitting in your lounge और आपको उस तरह का एक environment दिया जाता है so that you are pretty much sure कि आपका जो treatment है वो बहुत comfortable environment में हो रहा है and you're good to go with that. अच्छा, एक स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन का जो केस है वो कितना लेंथी होता है? देखिए, स्माइल ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी डन ओवरनाइट एज वेल, बट ऑब्वियसली जितनी जल्दबाजी में आप काम करते हैं उतना ही आपके जो रिजल्ट्स हैं रिफाइंड नहीं होते. सो आई एम अ पर्सन जो कि ये सोचता है कि आपको अगर कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वी शुड बी लाइक फोकस्ड ऑन इट. और अगर हमें 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, we should not hurry at all. Smile transformations are multiple things. If you're getting the smile transformation through aligners, आप अपनी पूरी दांतों की करेक्शन करवा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट टेक्स अराउंड 8 months to 1.5 year. That is the range for the complete treatment. अगर आप अपने aesthetic procedures पे जा रहे हैं such that you're getting a whitening treatment done, you're getting veneering or crowning done, so definitely वो तो within a week or 15 days भी हो सकती है. Okay, Dr. Waheen, बहुत ज़्यादा लोग assume करते हैं कि these treatments are very expensive. So what do you think? Are these really expensive? देखिए, ऐसा नहीं है. I would categorize dentistry into 2 things. Number 1 is the need-based dentistry and the number 2 is aesthetic dentistry. So definitely अगर कोई aesthetics के लिए आपके पास आ रहा है, so that is not a need. That is something which they want to invest on themselves. And I don't think that in investing yourself money matters. So if you want to get some quality treatment done, so definitely you have to pay something for that. But at DentoCorrect we have very standard and very effective price जो कि हम multiple clinics पे एक ही प्राइस आपको दे रहे होते हैं. अब लाहौर में अगर हम DHA में क्लिनिक कर रहे हैं और गुलबर्ग में कर रहे हैं और जोहर टाउन में कर रहे हैं, सो वी आर नॉट चार्जिंग डिफरेंट एट ऑल. ठीक है, इसी तरह हम कराची में भी किसी प्राइम लोकेशन पे अगर हैं तो आपको हम डिफरेंटली चार्ज नहीं कर रहे. सो वी हैव वेरी नॉमिनल चार्जेस एज कम्पेयर टू डिफरेंट मल्टीपल क्लिनिक्स, बट ऑन द अदर एंड व्हाट वी गिव यू एक्स्ट्रा इज द अश्योरेंस ऑफ द रिजल्ट्स. और जो हमने दूसरे एस्पेक्ट पे बात की थी विच वाज नीड बेस्ड डेंटिस्ट्री, सो मैं एक ही बात कहूँगा उसके लिए कि नीड बेस्ड डेंटिस्ट्री को आप जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते जाएंगे वो उतनी ही आपके लिए एक्सपेंसिव होती जाएगी. सो यू जस्ट गेट इट ग्रैब्ड at the initial stages to save your tooth as well as your money. Okay, so what services are you guys offering at DentoCorrect? So basically we are offering every service which is being done in the dental clinic, including scaling, polishing, including teeth whitenings, that includes zirconia crowns and PFM crowns, root canals, extractions. Even we have surgeons on board for certain surgical procedures which are like surgical root extractions of the wisdom tooth. Along with this, we also do implants. We have a specialist on board for implants and we are doing very great job in this. As you mentioned scaling and polishing, there's this one myth कि इससे ना enamel weak हो जाते हैं दांतों के and then you feel sensitivity in your teeth. ये कितनी इस बात में सच्चाई है? इसको थोड़ा सा मुझे elaborate करना पड़ेगा डिटेल में because it is one of the most common and the most debatable topic all around the world, जो कि patients जिसके ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं और आके हमसे भी पूछ रहे होते हैं. So scaling and polishing is one of the basic most procedure of dentistry. और scaling polishing में आपके enamel को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता. It is only the calculus which has been deposited on your teeth for years and years because you have never been to any dentist and you have never done your scalings before. So जब वो calculus deposits आपके दांतों पे आके grip करते हैं, so आपके gums को weak कर देते हैं. They take the place of your gums जिन्होंने आपके दांतों को hold किया हुआ है. और जब हम उस calculus को remove करते हैं, which is an abnormal thing,
तो आपके दांतों में ऑब्वियसली वो गम्स वीक हो चुके हैं, वो नीचे चले गए हैं अपनी जगह से, सो वहाँ पे स्पेसेस आ जाती हैं। व्हाट पेशेंट फील्स कि शायद हमने इनेमल को डैमेज कर दिया है, या फिर पेशेंट ये समझता है कि हमने गम्स वीक कर दिए हैं बट जब पेशेंट आप लाइक ठंडा गर्म खाते हो तो एक आपको फील होती है सेंसिटिविटी, Yes. वो किस वजह से सो होती बेसिकली आप देखें ना, जो हम बात अभी पहले कर रहे हैं कि गम्स आपके वीक हो गए, वो रिसीड कर गए, वो नीचे चले गए जस्ट बिकॉज कैलकुलस ने अपनी जगह ले ली थी। सो आपकी जो नर्व एंडिंग्स है वो उनको एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। सो जब भी आप खाना पीना खाते हैं या कुछ गर्म ठंडा गर्म पीते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक सेंसेशन होती है सेंसिटिविटी की, बट दैट इज टेम्परेरी फेज। 3 to 4 days? एग्जैक्टली, सो व्हाट वी से कि एटलीस्ट 15 days, 2 weeks आपको लग जाते हैं रिकवर करते हुए। बट आफ्टर 2 weeks आपके गम्स भी, आपकी डेंटल हेल्थ भी, आपकी सेंसिटिविटी भी, हर चीज इंप्रूव कर जाती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज फॉर दैट, और आपके इनेमल को कुछ नहीं किया जाता स्केलिंग पॉलिशिंग में। ओके डॉक्टर वहीन, वी हर्ड कि जितना ज़्यादा आप हार्डली ब्रश करेंगे उतने आपके दांत ज़्यादा साफ होंगे, तो इस बात में लाइक कितनी सच्चाई है? देखें, जितना ज़्यादा आप हार्शली ब्रश करेंगे और विदाउट एनी प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक आप ब्रश करेंगे, आप अपने दांतों को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे। आप उनको सेव नहीं कर रहे बल्कि उनको डैमेज कर रहे हैं। यू आर डैमेजिंग योर गम्स, यू आर डैमेजिंग योर इनेमल। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो अ प्रॉपर टेक्निक। यू जस्ट डोंट हैव टू रश इनटू इट। आपको बहुत ज्यादा फोर्सफुली ब्रश What is नहीं the करना। technique? यू कैन जस्ट गूगल इट ऑन, और आप प्रॉपरली उस पर यूट्यूब वीडियोज भी कंसल्ट कर सकते हैं। यू हैव मल्टीपल टेक्निक्स फॉर दैट, और प्रॉपरली जस्ट आपने सॉफ्ट या मीडियम ब्रिसल ब्रश लेना है, अपने दांतों के ऊपर रख के एक वाइब्रेटरी मोशन देना है, नॉट जस्ट कि आप बस उसको बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं और रगड़ रहे हैं अपने दांतों को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यू जस्ट हैव टू फॉलो पल्सेटिंग और वाइब्रेटरी मोशन लाइक दिस, और वेरी नॉमिनल, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगानी, सो दैट वी जस्ट क्लीन इट अप। और अलॉन्ग विद द ब्रशिंग आई वुड से कि हम बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं फ्लॉसिंग को, इवन वाटर फ्लॉसिंग को। आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है या कोई किसी के पास अवेलेबल है, तो वाटर फ्लॉस इज द बेस्ट थिंग टू यूज नाउअडेज। अदर देन दैट, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आर आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। दे हैव इनबिल्ट फीचर्स, सो यू कैन जस्ट फॉलो द प्रॉपर मोशन ऑफ द brushing technique, so you just don't have to worry about it. And even if you don't have anything within that, आप floss जो हमारे पास thread होता है, वो normal floss जरूर use करें after every meal. Do you think regular checkups are necessary? Yes, obviously. It's like आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप सोचें कि आपको डेंटल चेकअप नहीं कराना चाहिए, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपको नहीं नजर आ रही होती, बट अ डेंटिस्ट हैव अ क्लियर लुक ऑन इट विद द स्पेसिफिक टूल्स, सो पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे अभी ये इशू स्टार्ट हो रहा है। सो अगर हम किसी इशू को स्टार्ट में ही ग्रैब कर लेंगे, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा बुरा होगा। सो हम जब चीज़ों को पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे होने से, so that is the best possible outcome for the patient as well as for the dentist as well, कि patient जो है उसकी एक तो फाइनेंशियल को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, अलॉन्ग विद दिस उसके जो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होने से बच जाता है। एंड ऑब्वियसली फॉर दैट रीजन वी यूजुअली ऑफर फ्री डेंटल कंसल्टेशंस एंड जनरल चेकअप टू द पीपल एज वेल। So doctor, we heard that zero sugar drinks don't really harm your teeth. Is that true? I would say no, because this is something not related to sugar only. So the caries effect that comes onto your teeth is specifically related to the acidic effect, acidic action. So जब आप sugary drinks लें या आप non-sugar drinks लें, so they always have some carbonated action and acidic reaction onto your teeth, which corrodes your teeth, जो caries का बायस बनता है आपके दांतों पे। So sugar is not only the major factor जो कि आपके दांतों पे caries का impact generate कर रहा है, बट ऑलवेज आपको जब भी आपने कोई भी ड्रिंक का कंज्यूम करना है, आइदर शुगरी और नॉन शुगरी ड्रिंक, जस्ट ऑलवेज हैव टू रिंस योर माउथ, सो दैट कि जो वो एसिड आपके दांतों के ऊपर मौजूद हैं वो सारे के सारे इमीडिएटली रिमूव हो जाए। As you know, Gen Z drinks coffee a lot. Is it really bad for your teeth? Not really. Coffee is not something really bad, but obviously everything that is being consumed in excess is always bad. So you just have to take everything in moderation, and along with this, prevent some sugar and a lot of sugar. You just don't have to be like more flavory in it. And once again, I would say same for the coffee as well, that always rinse your mouth whenever you consume tea or coffee or any fizzy drink. Okay, doctor. So we have a lot of DIY aligners available on different online platforms. तो ये जो aligners हैं, ये clear aligners की तरह ही काम करते हैं या क्या difference है? So I would really want to discuss this thing
कि जो DIY aligners या जो भी आप बात कर रही हैं, so basically those are not aligners. Aligners specifically means जो आपके दांतों को align करे. So aligners हर patient के लिए customized product है, हर patient के लिए different needs हैं और उसकी needs को देखते हुए बनाया जाता है. Those are not universal product जो आपको market में मिल रहे हैं, आप उठाएं और पहन लें और आपके दांत सीधे करने की कोशिश करेगा. So that बट requires सिमेट्री आती है थोड़ी सी. no way at all, because that is a material property which the aligner companies are working on. I know one company which we are working with, that is ClearPath. So ClearPath is DRAP approved. So obviously that is regulated under Drug Authority. So which means के that is something very much serious and severe जो कि आप regular किसी भी over the counter product से achieve नहीं कर सकते, because you are dealing with human lives. So I think you should always deal with something जो कि credible है. और as just we talked कि it's something like customized for every single person. So how can you just think कि कोई universal product आपको भी fit हो जाएगा और मेरी needs को भी cater कर देगा? So this is just a waste of your money and time, nothing else. Thank you, Dr. Waheen, for your time and your great insights. Thank you so much for having me today, and I really appreciate your time and effort for all this. If you have been holding back your smile, I think this is your time to do something about it. Do visit DentoCorrect Clinic. Thank you for watching us. Follow us for more updates. Allah Hafiz.